Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today we will continue our last part of the chapter. इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं. So guys, if you haven't seen and read those parts, so please go and first listen them, try to understand them and then continue with this part. So I hope before we start this chapter, I request you all of you that please do like, share, and subscribe my channel, and never forget to hit the bell icon. So without any delay, let us start. Now, हमारा जो है स्टार्ट करने के लिए है आज यहाँ से ऑफिशियली एफर्ट्स आज यहाँ तक हमने देखा कि बांटना का जो है वो किस तरह का मतलब उसमें कस्टम्स हैं राइट किस तरह का जो बांटना है वो चेंज हो रहा है एंड वी ऑल्सो हैड सीन दैट कि प्रॉपरली चेंज नहीं होगा थोड़े बहुत अल्ट्रेशन इसमें होंगे राइट इससे आगे जो है फिर हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली एफर्ट्स टू स्टैंडर्डाइज फोक थिएटर स्पेशली करियाला कहाँ पे होता है फर्स्ट में मैंने आपको बताया था करियाला जो है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन शिमला राइट धजा एंड ऑल दिस मैंने आपको इनिशियली बताया था इफ़ यू डोंट नो आप पहला वीडियो देखो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फोक थिएटर होता है हिमाचल प्रदेश में. So, officially, efforts to standardize folk theatre, especially Karyala, were properly initiated at the first state level seminar on Himachal theatre that was organized by Department of Public Relation of Government of Himachal Pradesh on 26 and 28 March 1959 at Dhami. अब कहते हैं कि जो ऑफिशियली जो एफर्ट्स किए गए फोक थिएटर के लिए स्पेशली करियाला के लिए राइट वो जो करियाला को थोड़ा सा प्रमोट करना है लोगों को भी पता चले तो ये जो पहला स्टेट लेवल का सेमिनार था जो कि हिमाचल फोक थिएटर इसके ऊपर था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा 26 और 28 मार्च 1959 को जो है धामी में ये ऑर्गेनाइज किया गया था. The seminar recommended that while humor was important to Karyala and to analogous forms, obscenity should be discouraged. अब कहते हैं कि इस सेमिनार में क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि ह्यूमर तो इम्पॉर्टेंट है भाई करियाला के लिए राइट एंड टू सिमिलर फॉर्म्स obscenity should be discouraged. जो obscenity है वो discourage कर देना चाहिए. It also emphasized that the plot should reflect local custom and culture. इन्होंने इस पे भी फोकस किया इस पे भी तवज्जो दी कि जो प्लॉट है दैट शुड रिफ्लेक्ट लोकल कस्टम लोकल कल्चर को बताए. Further, it prescribed that the song be written down and translated into all local dialect. और इन्होंने और किस पे फोकस किया जो स्वांग है वो उसको लिखा जाना चाहिए उसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए किस में लोकल परिभाषा नहीं लोकल बोली में डायलेक्ट्स में राइट. हाउएवर द फ्रीडम एंड द spontaneity of Banthda artists would have been seriously compromised by such presentation and village Banthda continue as before in oral tradition. अब कहते हैं कि however the freedom and spontaneity of Banthda artists would have seriously compromised by such presentation and village बांटना continue as before in oral tradition. जो विलेज का जो बांटना था वो oral tradition में ही चलता रहा right. Nonetheless, the seminar was seminal because it brought Himachal folk theatre with its unique heritage to center stage and spotlight the unity in diversity interests to form. अब कहते हैं कि जो सेमिनार है हिमाचल जो फोक थिएटर जो सेमिनार हुआ था इट हैज़ showed it has kept हिमाचल की जो हेरिटेज है दैट वाज बीइंग kept in front of the people. हिमाचल की जो हेरिटेज थी दैट वाज एट द सेंटर एंड दैट shows the unity in the diversity. This discussion indicate that the rural setting and structure is essential to medium and Banthda. यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि भाई जो रूरल सेटिंग एंड स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है बांटना के लिए. In a way, its performance on stage could be seen as evolution of contemporary form of Banthda that engages the urban and wider audience. कहते हैं कि थोड़ा सा relevant बनाने के लिए right.
सो दैट जो आज के बच्चे हैं वो भी इसमें एंगेज हो सके, राइट? तो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी जो फॉर्म है दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द बांटना. Nonetheless, this is only applicable to such enactment that retain the intrinsic format and the religious, static, and spontaneous spirit of source, even though they may be condensed in space and time. अब कहते हैं कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू सच enactment that retains the intrinsic format and religious, static, and spontaneous spirit of source, which though may be condensed in space and time. अब जो स्पेस और टाइम में कंडेंस हो जाते हैं, वक्त के साथ जो घुल मिल जाते हैं, राइट, इन चीज़ों को इसमें इंट्रोड्यूस करना है. न्यू स्वांग्स रिफ्लेक्टिंग por, contemporaneous realities and issues emerge naturally and necessarily within the tradition and do not posit a break from the form. However, it must be remembered that all static performances in dialect of Mandi cannot be called Banthda and are more easily placed closer to static drama than to this traditional theatre. सो कहते हैं कि जो नया स्वांग है वो दिखाता है आज की चीज़ें, कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़, राइट, इश्यूज जो कि नेसेसरी है. एंड बट जो रियल फॉर्म है बांटना का वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. एंड जो परफॉर्मेंसेस हैं वो जो है आपके लोकल बोली है उसमें होनी चाहिए. और जो मंडी की जो डायलेक्ट है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बांटना, उसको बांटना नहीं कहा जा सकता. एंड मोर इजीली प्लेस्ड क्लोजर टू स्टैटिक ड्रामा देन टू ट्रेडिशनल थिएटर, राइट, दैट इज़ मोर क्लोज टू ट्रेडिशनल थिएटर के नज़दीक है एज कम्पेयर टू स्टैटिक ड्रामा. This conclusion raises the question of the threat of extinction of the village Banthda and possible steps to taken towards not only in preservation but its growth. कहते हैं कि जो ये कंक्लूजन है राइजेज द क्वेश्चन ऑफ थिएटर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ विलेजेस. फिर कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो विलेज का जो बांटना है थिएटर है दैट इज़ बीइंग इंस्टिक्टेड, राइट. जो फोक आर्टिस्ट हैं अब दे आर नो, ऐसा भी है नहीं कि नए बच्चे तो है नहीं कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स. प्रॉबेबली मोस्टली 10 में से जो है एक बच्चा ही होगा. बांटना एंड पॉसिबल स्टेप टू बी टेकन टू वर्ड नॉट ओनली इन प्रिजर्वेशन बट इट्स ग्रोथ. कहते हैं कि पॉसिबल जो कुछ स्टेप्स है वो लेनी चाहिए, इसको ना केवल प्रिजर्व करें बल्कि ये ग्रो हो तो ऐसे स्टेप्स जो है लेनी चाहिए. Ompal Sharma strongly believes that families, especially parents, should stress upon the presence and participation of their children on such occasion, just as they do for other religious and family celebrations. तो ओमपाल शर्मा जी का कहना था कि जो फैमिलीज है, परिवार है, वो पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों पे स्ट्रेस डाले भाई, राइट, कि इन तरह की चीज़ों पे भी, इन तरह के ओकेजन्स पे वो जो है अपनी जो प्रेजेंस है उसको ज़ाहिर करें, वो पार्टिसिपेट करें उसमें, जैसे कि वो दूसरे धार्मिक चीज़ों में करते हैं, फैमिली सेलिब्रेशंस में जाते हैं, आप लोग मैरिज में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, राइट, या मंदिर जाते हैं, तो उसी तरह से इन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करें, इनका ये कहना है. दिस इज़ पर्टिकुलरली रेलिवेंट फॉर दोज नॉन रेजिडेंट Pahadis who drawn away from the village to study or work elsewhere. अब कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली उनके लिए रेलेवेंट है और नॉन रेजिडेंट पहाड़ीज के लिए जो कि विलेज से बाहर चले गए हैं स्टडी और वर्क के लिए. दिस समस्कर ही फील्स विल बी सिग्निफिकेंट इन reinstating Banthda to its central place in village, countryside and people psyche. कहते हैं कि ये अच्छा साबित होगा, लाभदायक होगा, है ना, बांटना टू सेंट्रल प्लेस इन द विलेज, कंट्री साइड में एंड पीपल साइकी के लिए, राइट. द स्टेट ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस हेरिटेज आर्ट फॉर्म. राज्य को भी जो है कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए, राइट, टू प्रिजर्व दिस. थिएटर फेस्टिवल, पैट्रोनेज,
to village tropes, training, workshop, funding, research and documentation of Banna are area in which the government may serve well. अब कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना अच्छा मतलब काम कर सकती है, जैसे थिएटर फेस्टिवल्स हो सकते हैं, पैट्रोनेज टू विलेज ट्रोप्स, ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, वर्कशॉप करवा सकते हैं, रिसर्च को फंड किया जा सकता है, स्टेट एंड सेंट्रल से जो है वो हेल्प ली जा सकती है, डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है उन एरियाज़ की जहाँ पे बांटना परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी अपना जो एक कंट्रीब्यूशन है वो सुनिश्चित कर सकती है। The setting up of School of Himachal Folk Theatre would go a long way in strengthening, continuing and widening the sphere of folk theatre, including Bhatna. अब कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में folk थिएटर स्कूल खोल देना, एक हिमाचल फोक थिएटर। सो ये एक अच्छा है मतलब प्रयास होगा जिसमें यू कैन स्ट्रेंथन एंड कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपने इस फोक थिएटर को। स्फीयर जो है इसका वो और भी वाइड हो जाएगा, मतलब शाखाएं और भी फैलेंगी इसकी, राइट। Comparative studies of similar theoretical forms would infinitely enrich the understanding of folk theatre. अगर कंपैरिजन किया जाए डिफरेंट तरह के फोक थिएटर्स में, फोक फॉर्म्स में, तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी बच्चों में, राइट। फॉर इंस्टेंस Bhaktna shares the uninhibited historical tone and सो वी वर डिस्कसिंग दैट कि एक फोक स्कूल खोला जाए वेयर वी कैन डू अ comparative comparison of a different folk theatre. Then we have an example of Banthda, which shares uninhibited satirical tone and merciless caricaturing of contemporary dispensation with Taitri folk theatre of Goa, which is performed in village and also during festival and carnival. So एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बांटना का जो कि हिमाचल में परफॉर्म किया जाता है, एंड देयर इज़ वन फोक theatre in Goa which is being performed. सो ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड कार्निवल, तो इस तरह से कंपेरिजन किया जा सकता है। टाइटरी एक्टर्स आर वेल नोन इन गोवा and unlike the near obscurity of Banthda actors today who once enjoyed iconic status in their areas, the Bhavai Swang of Gujarat is strikingly similar to Banthda. Although Banthda preceded Bhavai by many centuries, as the later it is said to date from the 19th century, it shares with Banthda its sharp social stare, the religious component, oral transmission, a mix of song, dialogues, and dancing, and man playing female roles. अब होता था कि अब इसमें थोड़ा सा भवई स्वांग जो कि गुजरात में है दैट इज़ बीइंग, ये भी इसी तरह से स्ट्रिंगलिंग हो रहा है बांटना की तरह इसमें बताया गया है। ऑल्दो जो बांटना है दैट प्रोसीड्स भवई बाय मैनी सेंचुरीज, राइट। 19th सेंचुरी से इट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड एंड शेयर्ड। तो बांटना में क्या होता था कि देयर वाज अ शार्प सोशल स्टायर, राइट। सोशल जो भी मतलब इविल्स होते थे उन पे बहुत तंज कसे जाते थे, एंड रिलीजियस कंपोनेंट इसमें होता था, चीज़ें ओरली ट्रांसमिट होती थी, सॉन्ग इसमें मिक्स होते थे, डायलॉग्स होते थे, डांसिंग होते थे। जो मैन हैं दे यूज टू प्ले द रोल ऑफ वुमेन. The place of Shiva and Krishna in Bhatha is taken by Ambha, Ganesha, Kali, Bhavai. इस तरह के इसमें एक्टर्स के नाम हैं. Kanwar says that there was also tradition of singing hymns to Jagdamba. Hymns गाए जाते थे जगदम्बा के लिए. Arya Dev, the forest deity, and टू गणपति एंड सरस्वती इन द हिस्ट्री ऑफ बांटना, तो इनके लिए भी मतलब जो मंत्र है वो गाए जाते थे। irreverent humor, disrespect जो humor है is fundamental to भवई and सूत्रधार is replaced by नायिका, and the chief actor and gesture who remain on stage throughout. Bhavai blends Gujarati, Hindi, Urdu, Malwali, while Patna stick to one dialect. तो भवई में जो गुजरात में होता है वो बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो ब्लेंड करता है आपस में, जैसे कि हिंदी, उर्दू, मारवाड़ी, राइट। बांटना में आप
कि एक डायलेक्ट पे ही होते हैं ये लोग, मतलब एक ही बोली बोलते हैं, विद रेयर यूज़ ऑफ हिंदी, कम यूज़ होता है हिंदी भाषा का। ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ सिमिलर डिसमिलैरिटी ओपन अ रिच फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखिए भवई में और बांधा में कितना डिफरेंस है, राइट। सो कहते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं दैट शोज द सिमिलैरिटी इन डिसमिलैरिटी विच ओपन्स अ रिच फील्ड of interest in cultural diversity. Now, coming to in recent years, Himachal Pradesh has been promoting rural tourism, Matna performance in villages during their traditional season and in original form could lend impetus to village tourism as also to cultural and religious tourism. कहते हैं कि इन सालों में जो हिमाचल प्रदेश है वो प्रमोट कर रहा है जो आपका ग्रामीण जो आपका टूरिज़्म है उसको, जहाँ पे बांटना जो है वो विलेज में परफॉर्म किया जा रहा है ट्रेडिशनल सीजन के टाइम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में, एंड which is also blending its cultural and religious tourism. This would benefit the Pradesh by bringing tourists to village destination. तो इससे क्या होगा कि जो लोग सिर्फ कुल्लू मनाली या फिर शिमला ही जाना चाहते हैं वो विलेज में भी आएंगे, राइट। इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ टूरिस्ट, तो विलेज में आएंगे लोग, opening up new avenues of income for people and taking pressure away from usual tourist destinations such as Shimla and Manali. तो कहते हैं कि लोगों के लिए नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे इनकम के, और जो ज़्यादा प्रेशर होता है टूरिस्टों का जैसे कि आपके शिमला में मनाली में तो वो कम होगा. टूरिस्ट विल गेट एन इंसाइट इनटू द रिच कल्चर ऑफ द स्टेट. जो टूरिस्ट हैं दे विल गेट एन इंसाइट इनटू रिच कल्चर ऑफ द स्टेट. तो टूरिस्ट को भी लगेगा पता कि भाई हिमाचल में कितना रिच कल्चर है, राइट. विच मे कैन नॉट बी ओनली विजिटिंग द स्टैंडर्ड सीनिक टूरिस्ट स्टेशन, जो कि उनको केवल स्टैंडर्ड जो सीनिक हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ जाके पता नहीं लगती है चीज़ें. दे विल get to know more when they went to villages. इसका ये मतलब है. Of course, it could be adventurous to Batna by providing it much needed patronage and renewed pride in its heritage. So, Bantna performs several important social, cultural, political and religious functions. अब कहते हैं कि बाटना बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एंड धार्मिक जो फंक्शंस को करता है. इट मे बी सीन एज sinew that keep the bone and flesh of society together while providing for analysis, criticism and change. कहते हैं कि ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है, राइट. सिन्यू मतलब कनेक्टिंग पॉइंट, जो कि सोसाइटी को आपस में बांध के रखता है, एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म है, दैट जो भी कोई प्रॉब्लम है बांटना takes in front of the people. It is requisite color in palette of Himachal culture, the fading of which will leave its irreversible poorer in all its unchanged, changed and changing forms. Batna once again needs to become a big part of the rhythm of life in the hills. अब कहते हैं कि जो आपका रिक्विजिट कलर है, राइट, प्लेट्री ऑफ हिमाचल का जो कल्चर है, जो फेडिंग हो रही है बांटना की, सो जितना ये अनचेंज्ड है, चेंज है या फिर चेंजिंग फॉर्म में है, सो बांटना को दोबारा से जो है वो राइज करना चाहिए. इट नीड टू बी टेक केयर ऑफ, राइट. एंड ये एक इट कैन बिकम अ बिग पार्ट ऑफ रिदम ऑफ लाइफ इन द हिल्स. सो जो जीवन है पहाड़ों में, तो उसका एक रिदम जो है बांटना दोबारा बन सकता है. तो इस तरह की इस चैप्टर की एंडिंग है. एंड दीज आर सम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपके पास व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टैटिक अकॉर्डिंग टू जोसेफ एडिसन, इसमें मिल जाएगा आपको. गिव एनी टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बांटना, बांटना के 2 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि सोशल अवेयरनेस को बढ़ाना, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो. व्हाट वाज द नेम ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ट्रीटीज ऑन बांटना, तो आप ये चैप्टर में देख लेना. Who was the writer of this treatise? What does cultural diversity comprises? Cultural diversity में क्या आता है सारा लिख देना जो तुम्हारे दिमाग में है. Cultural diversity में language, religion, all this thing है ना.
Khana Pina, folk theatre, all this. Name two of the important center where Banthda was performed. बहुत सारे centers हैं, right? सुकेत, मंडी, इस तरह के सारे, करियाला, ऑल दिस आ जाएगा इसमें। और भी मालवा, महाराष्ट्र, जो भी थे वो नाम यू कैन राइट। Answer the following okay questions one under 250 words. Write a note on origin of word बांटना का origin किस तरह से हुआ है। तो चार पांच चीज़ें थी बांटना की origin में, तो आप ये लिख सकते हो। What are some of the important function performed by बांटना, बांटना के द्वारा क्या important function performed किए जा सकते हैं, आप यही लिख सकते हो। social awareness and environment conservation and all this, इसी तरह से related चीज़ें हैं इसमें। describe briefly some similarities and differences between बांटना and भवई। तो भवई गुजरात में है, बांटना हिमाचल प्रदेश में है। सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, जैसे डायलेक्ट्स बांटना में तो एक ही बोला जाता है, थोड़ी हिंदी यूज़ की जाती है, भवई में बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरह से लिख सकते हो। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन फोक थिएटर ऑफ हिमाचल। फोक थिएटर ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो है आपने ब्रीफ नोट लिखना है। डिफरेंट डिफरेंट जगह के जो फोक थिएटर हैं उनके बारे में जो है वो आपने लिखना है, ठीक है। नाउ what kind of change do you see in the form of enactment of बांटना over a time? बांटना किस तरह से जो है वो चेंज हुआ है over a time, वो आपको जो है इसमें बताना है। And answer the following in 300 to 350 words. Okay. Discuss the pros and cons of बांटना performed in theatre and urban setting. प्रोज एंड कॉन्स क्या बताए थे, प्रोज क्या है इसके, कॉन्स क्या है। प्रोज तो आप लिख सकते हो जैसे कि बांटना अगर थिएटर में परफॉर्म किया जाता है तो इसके क्या प्रोज है, इसके क्या कॉन्स है, तो वो इसी में कुछ कुछ तो आपको बताएंगे, कुछ कुछ आप सर्च करके खुद मेहनत करके इसमें लिख दीजिएगा, राइट। जैसे इसमें बताया गया था जो अगर प्रोज क्या होगा अगर थिएटर में होगा बांटना, तो ये जो है क्या होगा, प्रोज तो ये होगा कि मतलब इजीली जो है वो ऑडियंस आपके पास डिफरेंट तरह की ऑडियंस होगी, राइट। एंड आपके पास बट थोड़ा सा डिसकनेक्शन होगा ऑडियंस के साथ, राइट। जिस तरह से गांव में होता है तो उस तरह से जो है वो सेटिंग नहीं हो पाती है ऑडियंस के साथ, आप एकदम से मिंगल्ड नहीं हो सकते ऑडियंस के साथ। तो इस तरह का आप इसमें लिख सकते हो। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ बांटना, की क्या रीज़न है डिक्लाइन होने के, बहुत सारे हो सकते हैं, अब बहुत कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हो डिक्लाइन होने के। एक तो देखिए इसके रिटर्न हमारे पास कोई भी ये नहीं है, काफ़ी कम है अपनी डायलेक्ट में, और आज के मतलब न्यू जनरेशन दे कांट हार्डली पीपल स्पीक ऑन देयर ओन डायलेक्ट, राइट। वी यूज़ हिंदी इंग्लिश टुडे, सो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। सजेस्ट मेथड फॉर रिवाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ बांटना इन 21st सेंचुरी, किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। दुआ फोक जो थिएटर स्कूल है इस तरह से उसमें जो है वो क्या नाम कहते हैं, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से, मतलब डॉक्यूमेंट्री हो उस पर, रिटर्न इसके लिए ट्रेडिशन हो, रिसर्च में फंडिंग हो, तो इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। ये आपको चैप्टर में भी बताया था, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। व्हाट इज़ फोक थिएटर, क्या होता है, राइट डिटेल नोट ऑन डिस्क्राइबिंग इट्स सेलिंग फीचर्स। तो इसके फोक थिएटर के फीचर्स क्या होते हैं वो लिखने हैं आपने, ठीक है। हाउ कैन फोक थिएटर रिवाइव रूरल टूरिज़्म, तो इसमें जैसे हिमाचल का भी एक एग्जांपल था कि गवर्नमेंट किस तरह से ये रिवाइव कर रही है, तो आप इसी तरह से कुछ मतलब अपना रिसर्च करके इसमें कर सकते हो, राइट। सो everyone, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and I hope you got some sort of help from these videos. So that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye and take care.